Now I'm talking about factors affecting photosynthesis. Photosynthesis is affected by both internal plant factor and external environmental factor. तो इंटरनल फैक्टर प्लांट के अंदर जैसे क्लोरोफिल हो गया और एक्सटर्नल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. The internal or plant factor that affect the rate of photosynthesis include the number, size and age and orientation of leaves, mesophyll cells, chloroplast, the amount of chlorophyll and the internal CO2 concentration. So now I'm explaining Blackman's law of limiting factor. When a physiological process is controlled by a number of factors, the rate of reaction depends on the slowest factor. This means that at a given time only the factor which is the least limiting among all the factors will determine the rate of reaction. तो ब्लैकमैन्स का जो लॉ है लिमिटिंग फैक्टर का, वो ये कहता है कि कोई भी चीज फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में प्लांट को दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस की रेट उसी पे डिपेंड कर जाती है. फॉर एग्जांपल, हमने प्लांट को सब कुछ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी, सनलाइट दी, लेकिन हमने वाटर कम कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, जो रेट है, वो वाटर के ऊपर डिपेंड कर जाएगी. अब मान लिया हमने वाटर बढ़ा दिया तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, लेकिन अगर हमने अब सनलाइट कम कर दी तो फोटोसिंथेसिस की रेट सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर जाएगी. तो जो भी फैक्टर हम सबसे कम अमाउंट में देंगे, फोटोसिंथेसिस उसी के ऊपर डिपेंड कर जाती है, उसका प्रोडक्शन. इसे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. Now I'm explaining factor number 1, light. Light quality and light intensity influences the photosynthesis. Light of wavelength between 400 nanometer and 700 nanometer is effective for photosynthesis, and the light is known as photosynthetically active radiation, PAR. This light. तो लाइट की वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस लाइट को हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. As the intensity of light increases, the rate of photosynthesis increases, but at higher light intensity, the rate of photosynthesis does not increase. It may be due to two reasons. Number 1, other factor needed for photosynthesis may be limiting. Number 2, destruction means photo oxidation of chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर बढ़ती है और कम होने पे कम हो जाती है. हाई लाइट इंटेंसिटी जब हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती नहीं है. इसके दो वजह हैं. एक तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके फैक्टर किसी और पे डिपेंड कर जाए, या फिर क्लोरोफिल का फोटोऑक्सीडेशन हो जाए. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. The photochemical phase is less affected by temperature, but the biosynthetic phase that involve enzyme catalyzed reaction is more sensitive to temperature. The C4 plant have a higher temperature optimum, while C3 plant have a lower temperature optimum. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती, लेकिन बायोसिंथेटिक फेज जो है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. C4 प्लांट में हाई टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम, जबकि C3 में लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. In C3 plant, the rate of photosynthesis increases with increase in CO2 concentration, and saturation occur beyond 450 mu per liter. In C4 plant, the saturation is reached at concentration of about 360 mu per liter. तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हिसाब से C3 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है, और सैचुरेशन लगभग 450 म्यू पर लीटर पे हो जाता है, जबकि C4 प्लांट में सैचुरेशन जो है वो 360 म्यू पर लीटर पे होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अवेलेबल सॉइल वाटर. Water influences photosynthesis in two ways. If available water decreases and plants show water stress, the stomata close, hence there will be a decreased supply of carbon dioxide for photosynthesis, and the leaf become wilted and the surface area for activities decreases. तो वाटर कितना अवेलेबल है इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है, और दो तरीके से करती है. अगर पानी जो है वो कम मिल रहा है प्लांट को तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस फोटोसिंथेसिस में उसका अमाउंट भी डिक्रीज़ कर जाता है, और लीफ जो है वो मुरझा जाती हैं पत्तियां, और सरफेस एरिया भी उनका डिक्रीज कर जाता है इस एक्टिविटी में. तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पर इफ़ेक्ट
डालते हैं और फोटोसिंथेसिस की रेट इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है।